પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નહાવું છે. ભક્તિ રસમાં દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ઉષા, loudly. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું
છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद वेरी गुड अभी थोड़ा टाइम है तो शुद्धात्मा प्रत्यय पाठवा किसको आता है ओके चिनाई जय सच्चिदानंद हे अंतर्यामी परमात्मा आप दरेक जीव मात्रમાં વિરાજમાન છો એમ જ મારામાં પણ વિરાજેલા છો આપનો સ્વરૂપ તે જ મારો સ્વરૂપ છે મારો સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે હે શુદ્ધ આત્મા ભગવાન હું આપને અભેદ ભાવ से અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું અજ્ઞાનતાઈ કરીને मैं જે दोषों किए हैं उन सभी दोषों को आपने समक्ष जाहिर करूं છું તેનો હૃદયથી હું પસ્તાવો કરું છું અને આપને પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું हे प्रभु મને क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो फिर से ऐसे दोष कभी भी नहीं करूं एवी आप मने परम शक्ति आपो हे शुद्ध आत्मा भगवान आप ऐसी कृपा करो कि हम में भेदभाव छूटी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त થાય हमें તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મય આકાર રહે જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद क्विकली नव कलमो श्रेया दीदी नंबर 1 જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચન માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો અને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચન માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એ શાશ્વત વાણી શાશ્વત વચન શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. वेरी गुड नवनीत दीदी नंबर 2 હે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દબાવાય કે દબાવવા પ્રત્યે ન નમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દબાવાય એવી શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. वेरी गुड मोनिका दीदी नंबर 3 हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपो नंबर 4 खुशी हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની પ્રતિ किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए न करवाया जाए कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो नंबर 5 दर्शना दीदी हाँ हे दादा भगवान मुझसे किसी भी देहदारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी कठोर भाषा संतुक भाषा न बोली जाए न बुलवाई जाए एवं किसी कर्ता को वैसा भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे यदि कोई कठोर या तंत्रिक भाषा उच्चारित करे तो उसके प्रति रुजु भाषा बोलने की आप मुझे परम शक्ति दे जय खुशहाल हे दादा भगवान मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति चाहे वो स्त्री हो पुरुष या नपुंसक लिंग हो तो भी उसके प्रति किंचित मात्र भी विषय विकास संबंधी दोष इच्छाएं चेष्टा या विचार से द्रोह से न किए जाए न करवाए जाए एवं किसी को वैसे करने का आमंत्रण न दिया जाए ऐसी परम शक्ति लेने की परम शक्ति आप मुझे दी वेरी गुड दिक्ताक सेवा नंबर 7 હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો हरुष नंबर 8 હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ अपराध अविनय न कराय
ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Very good. Divya, number 9. Hé đại ơi, mọi đi tập gỡ cho con đi nhìn mấy chụp bò nó quá nó không tập tập. Very good. बहुत जल्दी जल्दी बोलती है आप. Okay, very good. दीपक दादा अभी त्रिमंत्र वाला है प्लीज. नमो वीतरागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम नमो सावरम. ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो ऐसो पंचमुखारो तवमा वप्पणासणो तवपावपरासनो मंगलाणं च सवेसिम मंगलाणं च परमं हवै मंगलम परमं हवै परमं मंगलम् मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. तो आज हेल्थ में दादा को खुश किया कि नहीं? डेली प्रेयर हाँ? नो डेली प्रेयर ओ आ तो क्या सॉरी डेली प्रेयर. इताक्षी बा थैंक यू. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं कुसंग से बुरी सबद से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया के योग और अपने आत्मा के उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा में ही करूँ, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है. हे दादा भगवान, मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. पुणे. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ. आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. आरुष एंड दिव्या. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान भगवान हे आपके बच्चे, हम हैं हम हैं आपके बच्चे. इनके सच्चे फिर भी है कच्चे, पीर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे 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 अच्छे. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. ओके, तो आज तो हेल्थ दादा को कितना खुश किया हेल्थ में श्रेया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को हेल्थ में खुश नहीं किया. हो राजी नहीं किया. इताक्षी बा खाना नहीं खाया? खाया था. उसमें कितना रस आया?
मुझको 6 रस है। कितना? 6 रस है। ये कड़वा किस में आया था? दाल बनाई थी तो दाल में क्या था? दाल में सब टेस्ट आए थे। कड़वा कड़वा किस में आया था? दाल में क्या डाला था मम्मी कड़वा ने? कड़वा लीमड़ा डाला था। आह, कड़वी दवा डाली थी मम्मी ने? नहीं। तो फिर मम्मी को पूछो। ओके हिताक्षी बा। श्री सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को खुश किया था। क्या किया? आज मैंने दादा को खुश किया था। तो बोलो कैसे, क्यों, क्या किया था? आज मुझे खाने में 600 के 6 टेस्ट आए थे और आज मैंने ओ। एक्सरसाइज भी की थी और मैं सुबह को जल्दी उठ गई थी। हाँ, तो ये सब क्यों याद नहीं आता है दादा को खुश करने का? के नवनीत दीदी? जय सच्चिदानंद, आज मुझे 5 टेस्ट आए थे, मुझे कड़वा नहीं आया था और मैं सुबह जल्दी उठी थी। सुपर ब्रेड योगा मैंने 20 टाइम्स किया था। और किसी ने बताया नहीं सुपर माइंड का योगा कितना किया था जिसका के बाद? 10 टाइम किया था मैंने आज। दर्शना दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को खुश नहीं किया था। आज मुझे 6 रस आए थे और आज मैंने सुपर ब्रेन योगा में भी करूंगी और आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था और मैं सुबह 7:45 उठी थी। क्यों आज एक्सरसाइज क्यों नहीं किया था? ले तो दादा को अनवेल खुश? हूँ मैं। हाँ, मस्ती बहुत करती थी। नहीं, अनवेल हूँ। तो ऐसे कैसे तो दादा कैसे खुश होएगा आपके पे? खुशहाल? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को खुश किया था। आज मुझे खाने में 6 रस आए थे। आज मैंने 110 टाइम सुपर ब्रेन योगा किया था और आज मैंने टोटल 1 आवर एक्सरसाइज की थी। 20 मिनट सूर्य नमस्कार और 10 मिनट साइकिलिंग की थी और मुझे आज मैं 8:35 उठ गया था। यही तो, क्यों, क्या हो गया था आज? आज मोदी जी को मिलने नहीं जाने का था? हाँ? और ये कड़वा कौन सी दवा डाली थी मम्मी ने? कौन सा खाने में डाली थी कड़वा? मेथी थी पंपकिन। ओ मम्मी, उन लोग को आपको पहले से बताना मांगता है, अभी नहीं। सत्संग में नहीं बताने का, पहले से बताने का होता है। ओके, कौन बाकी है? चिनाई? उनको पता है जय पर बोल नहीं रहा। सच्चिदानंद। हाँ, तो उसको बोलना मांगता है ना। चिनाई? हाँ जय सच्चिदानंद, आवाज सुनाई दे रही है? हम आती है, बोलो, नजदीक आके बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने गोल 5 o'clock उठना था। आज मैं 5 o'clock उठी थी और आज मैंने एक्सरसाइज 50 मिनट्स की थी। साइकिलिंग और सुपर योगा मैंने 20 टाइम्स की थी और आज मुझे खाने में 3 टेस्ट आए थे जिसमें मुझे मीठा, खट्टा और तीखा आया था और आज मैंने खाने से पहले 3 टाइम्स प्रेयर बोली थी। वो बॉटम लाइन बोलो, दादा को खुश किया था कि नहीं किया था? फिर वो तो बॉटम लाइन है ना। मोनिका, दादा को खुश किया कि नहीं? नहीं, आज मुझे और सिर्फ नहीं 3 किया? टेस्ट। ओके, खुशी? जय सच्चिदानंद, आज मैंने दादा को खुश नहीं किया था क्योंकि मैंने आज 6 o'clock को उठना था। मैं 7 o'clock को ही उठी थी और मुझे आज खाने में 3 टेस्ट ही आए थे, मीठा, तीखा और खट्टा ही आया था। क्या बना? मम्मी ने क्या लड्डू बनाया था? नहीं, हलवा बनाया था, क्या? गाजर का हलवा। हलवा? वही खाया आपने? वही नहीं, खाया डिनर में? नहीं, और दाल चावल। दाल में आप कुछ कड़वा नहीं डालते हैं? मेथी नहीं डालते? डालते हैं,
मेथी नहीं डालते, सांबार बनाया था इसलिए। और सांबार में तो नहीं आता है, तो राजस्थानी बनाते हैं कि तमिल बनाते हैं सांबार? तमिल में बनाया था आज। हाँ इसलिए। क्या अव्यय? हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे 6 बजे उठना है। मैं आज 6:30 बजे उठा था और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी और मैंने सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स किए थे और मुझे 5 रस आए हैं और मैं 12 o'clock सोया था। तो कितना बजे सोए थे? 12 o'clock। क्या करते हैं 12 लोग तो? दीपक आनंद जी, व्हाट इज इंडियन किड्स, व्हाट दे डू इन यूएसए? सब किड्स 8 बजे सो जाते हैं, नहीं, एवरीबॉडी बिकॉज 8 o'clock। पेरेंट्स टेक केयर। यहाँ पेरेंट्स टेक केयर नहीं करते हैं। वो जागते तो जागने देते, सोते तो सोने देते, खेलने तो खेलने देते, कुछ नहीं अव्यय, करते। क्या क्या करते थे आप 12 बजे तक? You know, after the satsang, everybody must go to sleep. हाँ? क्या क्या करते आप? करते थे नहीं बताया। 12 बजे तक क्या करते थे? मैं खेलता था किसके साथ? भाई के साथ अपने। अच्छा, घर में सब लोग सो गए थे नहीं, और वो किसी ने बताया नहीं सो जाओ करके? मम्मी ने बोला था 11 बजे। फिर नहीं सुना? वो तो गलती नहीं है ना, गलती है। लेकिन प्रतिक्रमण नहीं किया, नहीं किया ना, तो ये मिस्टेक पता चली ना। गलतियां हो जाती है, लेकिन उसका प्रतिक्रमण नहीं चुके तो हम दादा के बच्चे हैं। समझ में आया? हाँ। वो गलतियां क्यों प्रतिक्रमण करने का, कि हम गलती के फेवर में नहीं है, गलती के पक्ष में नहीं है। प्रतिक्रमण कर लिया यानी वो गलती रिपीट नहीं होगी। समझ में आया? इसीलिए प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो गलती रिपीट होने के फुल चांसेस है। जय सच्चिदानंद। ओ अव्यय, आप बहुत मिस्टेक करते हैं, आपको मालूम नहीं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अरुष? जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा भगवान को खुश किया था। मैं आज सुबह 7 o'clock उठ गया था और रात को 12 o'clock सोया था क्योंकि मैं जयमेश ताला के घर पे गया था। और आज मुझे 5 out of 6 टेस्ट आए और आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 10 टाइम्स किया। और एक्सरसाइज कराटे में गए थे? एक्सरसाइज 20। हाँ ओके दीपक दादा। क्या? ओके चलेगा। कराटे में गए थे? नहीं, ओके, घर पे ही किया था। अच्छा। जय सच्चिदानंद। देखो, दादा 100% खुश कब होंगे कि जब हम सभी एरिया में, हमारे सभी नियमों में हम पक्के होंगे। लेकिन इतनी आसानी से वो होता नहीं है, कहीं ना कहीं गलतियां रह जाती है, तो उसकी हम मना नहीं करते हैं। गलतियां होती है, करते नहीं है, लेकिन उसके पीछे प्रतिक्रमण नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती है। ऐसा समझ में आता है? अव्यय, समझ में आता है? हाँ। आज नहीं हुई तो कल होगी, कल नहीं हुई तो परसों होगी, लेकिन हम प्रतिक्रमण चुके नहीं, इसका ध्यान रखना है। तो धीमे धीमे हम गलती बगैर के हो जाएंगे, और गलती बगैर के यानी किसके जैसे? दादा भगवान के। परफेक्ट, दादा भगवान जैसे परफेक्ट हो जाएंगे। दादा भगवान ने क्या बताया? हमें कोई कहने वाला नहीं था, हम खुद ही बहुत
पुरुषार्थ किए, मेहनत किया, और खुद की मेहनत से हम अपने बल पर इतने ऊपर आए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा। लेकिन हमें दादा भगवान मिले हैं, उनका साइंस मिला है, उनका विज्ञान मिला है, तो उनके विज्ञान की समझ से और प्रतिक्रमण की विज्ञान से हम आसानी से बहुत थोड़े ही समय में उनके जैसे हो सकते हैं। इसीलिए ये सब हम मेहनत करते हैं। सभी को समझ में आया? हाँ, प्रतिक्रमण को ऐसा इधर लिख देता है ना, ऐसा रखने का है। करेक्शन जो करते हैं वो एक दिन परफेक्ट होके रहते हैं, लेकिन करेक्शन नहीं किया तो क्या करेंगे? परफेक्शन इज फार अवे। जय सच्चिदानंद। और आपको दादा भगवान को हैप्पी क्यों करने का होता है? वो तो हम पूछते हैं। हम हाँ? डैडी मम्मी को तो जेब में लेके घूमते हैं, और डैडी मम्मी भी बहुत प्यार करते हैं, बोलते नहीं है, डांटते नहीं है। हमको तो डंडा पड़ता था। दर्शना, दादा भगवान को हाँ, क्यों हैप्पी रखने का है? क्योंकि अगर हम बोलते हैं इसलिए कि आपको करने का है। हमको करने को है, क्यों? आरुष, अपने लिए हम बड़े हो गए उनके जैसे बन जाए इसलिए। उसके जैसे क्यों बनना है क्या आपको? इताक्षी बा, हाँ, हमें उनके जैसे बनना है क्योंकि हमें उनके गुण, जो अच्छे गुण है वो हमारे में आए। ओके, गुण आए। क्यों गुण अच्छा रखने का है? उससे क्या फायदा होगा? वो हम विशाल, इजीली जा सकते हैं। विशाल, हमें ज्यादा अच्छा भगवान गुण से करके क्या फायदा करेगा आप? हमें आगे जाके दादा भगवान का जो ज्ञान करवाते हैं सत्संग में और समझते हैं उनका मिलता है। समझ तो हम बड़े होके, और अभी हमें बहुत हेल्प मिलती है दादा से। यस, दैट इज ट्रू। पर लेकिन अल्टीमेट क्या अपना गोल है, किसको मालूम है? मोनिका, हमारे तीनों गोल में सिंसियर रहने का। तो ठीक है, सिंसियरिटी करके क्या फायदा होगा? हमें दादा भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, जिससे हमें जो भी चाहे। क्या ब्लेसिंग मिल के क्या होगा? आपको क्या फायदा होगा? हाँ? ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो हमें मोक्ष में जाने के लिए आगे मार्ग मिलेगा, और हमें जो भी चाहे वो दादा देंगे, और कोई भी संजोग आएगा वो हेल्प करेंगे। एक मेन थिंग सब भूल जाता है, रविजय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमें दादा भगवान जैसे इसलिए बनना है क्योंकि हमें जीवन में ट्रूथफुल, सिंसियर और मोरालिटी बनना है। नहीं, वो तो ठीक है, वो उसके ये कर सब करेगा तो क्या फायदा होगा? श्रेया दीदी, हमको दादा भगवान के जैसे ऐसे बनना है कि हम सब जगह पे एडजस्ट हो पाए, जो भी संजोग आए। वो सबको आनंद, सब अच्छा बोलते हैं, पर एक शब्द नहीं मालूम क्या है। नवनीति दीदी बोलो। जय सच्चिदानंद। हम पढ़ाई और अच्छे से कर पाएंगे और जिंदगी में फैले पाएंगे और सबकी मदद करेंगे। आई नो, मरविल, अपना गोल क्या है? हमारे HAPPY। गोल्स। हाँ, हैप्पी। I don't know. HAPPY का क्या होता है मीनिंग? What does that mean? कोई नहीं बोलते। हैप्पी। इंग्लिश नहीं आता किसी को? हैप्पी। हाँ, आप हैप्पी बनने का ये सब धंधा है, और आप हैप्पी बनेगा तो क्या होगा? दूसरों को खुश रख पाएंगे, उन्हें खुशी दे पाएंगे। तो सारी हमारे दुनिया हैप्पी मम्मी पापा करेंगे, हाँ। सारी दुनिया हैप्पी करेंगे। पहले माँ बाप को। दर्शना, माँ बाप का भी यस 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 हो जाएगा। आप हैप्पी होगा यस से, मम्मा
पप्पा यस हो जाएगा। ये जरा ध्यान रखना। अल्टीमेट गोल हैप्पी 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 हैप्पी, अंदर हैप्पी होने का, बाहर नहीं। और टॉय मिलता है तो हैप्पी होता है, इसकी बात नहीं चल रही है। ओके, सबको मालूम पड़ गया? हाँ हाँ, तो आप हैप्पी रहता है? ऑल डे हैप्पी रहता है? नहीं। नहीं, दादा भगवान ऑल डे हैप्पी रहते थे? हाँ ओके, क्यों रहते थे? वो किसी को दुख नहीं देते हैं, क्या नहीं करते हैं? वो किसी उनका दुख का धंधा नहीं था, सुख सुख का धंधा था इसलिए। तो ऐसे कैसे करते धंधा, सुख का धंधा? ताकि उन्हें मोक्ष मार्ग में आगे जाने मिले और ज्ञान। तो वो अभी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए रजनी दादा बच्चे। हाँ, और फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल बताओ दीपक दादा, फंडामेंटल क्या है? दादा भगवान ने बताया कि हमारे अंदर के दादा भगवान ने जो जो गलतियां दिखाई, वो हमने सिंसियरली उसका प्रतिक्रमण किया, करेक्शन किया। क्योंकि ज्ञान प्रकाश है ना अंदर, हमारे अंदर दादा भगवान का, वो ज्ञान प्रकाश सब कुछ दिखा देता है और हमारी गलतियां भी वो दिखा देते हैं। तो हम दादा भगवान को सिंसियर, दादा भगवान के सही सिंसियर ओबीडियंट बच्चे कब कहा जाएंगे, कब कहे जाएंगे? जब वे हमें गलतियां बताते हैं। पापा मम्मी को तो सुनते ही नहीं है, पापा मम्मी परेशान हो गए अभी, बोले अभी बोल के हमको कुछ फायदा नहीं है, अभी वो थक गए हैं। लेकिन अंदर के दादा भगवान थकते नहीं है। वो क्या बताते हैं? वो हमारी गलतियां बताते हैं, तो हमें सिंसियरली उसका प्रतिक्रमण कर देना चाहिए। और ये किया तो आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अभी कोई कहे जाता है, डांटता है तो अच्छा लगता है ना आपको? नहीं, तो 2 रोटी ज्यादा खाते हैं ना, कि खाने का मूड चला जाता है, फिर खाने का मूड चला जाता है। मूड चला ही जाना चाहिए। क्योंकि प्रतिक्रमण क्यों नहीं किया? गलतियां तो हो जाती है, लेकिन प्रतिक्रमण करेंगे। उन्होंने क्या कहा पता है? मुझे भगवान भी आके पूछ नहीं सकते ये रड्डी दादा दीपक दादा कौन है, कोई नहीं। समझ में आया? हमारी गलतियां ही हमारा कान पकड़ दी है। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा फनी लगेगा, दिन में एटलीस्ट 10 टाइम तो बाथरूम जाते हैं कि नहीं? बोलो ना। नहीं जाते, कोई नहीं जाते। मैं तो जाता हूँ। जाते हैं। एवरी टाइम मैं 10 टाइम्स ये करता हूँ, तो कितना हो गया मेरा? 20. है 10 टाइम्स मैं जाता हूँ, एवरी टाइम 10 सुपर ब्रेन योगा करता हूँ, तो कितना हो गया? कितना टाइम लगता है मैथमेटिक्स? 10 into 10 हाउ मच? 100 मेरा ऐसा ही हो जाता है मिनिमम। लेकिन आलस आती है, बोला नो आलस बिजनेस। समझ में आया? तो किसी को दर्शना बोलती अभी तो मैं दर्द सोने से पहले करूंगी, बोलती है। ये आइडिया आ गई? वी मस्ट प्लान, ऐसा प्लानिंग करो कि उसमें गलती हो ही नहीं सकती, मिस होने का चांस ही नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। ऐसे ही 100 टाइम हो जाएगा, तो अच्छा नहीं है? अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है। और सी, आप बच्चे लोग तो दौड़ते हैं वगैरह, हम तो कभी दौड़ना होता ही नहीं है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है। ओ करुणा मम्मी, सुनाई दिया? हाँ, हाँ मैं भी करती हूँ। जैसे बड़े होते हैं ना, तो
हिलना फिरना चलना उतरना बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब तो स्कूल में भी खेल लेते हैं, स्कूल में खेलने का पीरियड होता है, यू हैव द टाइम, तो वो आप खेल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल है। तो ये एक्टिविटी हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई, तो ये हमने सेटिंग कर दिया। अच्छी लगी सेटिंग? सोचना, तो ये अपने आप ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आया? सो दैट्स इट। और मेन गोल, ये 3 goals of life, health, study and सत्संग और सत्साधन, वो क्यों है? These are the 3 major aspects of our life. बहुत महत्व की बातें हमारे जीवन की है, तंदुरुस्ती, पढ़ाई और सत्संग। और ये 3 में हम पक्के हो गए, और ये नियम जो हमने रखे हैं अपने लिए, हमने बनाए खुद ने, और उसको फॉलो करेंगे, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। कोई डांटने का मौका ही नहीं देंगे आप। वैसे मम्मी को हमेशा गुस्सा आना चाहिए कि मैं इसको कहाँ से डांटूं, कुछ डांटने के लिए रखा ही नहीं है मेरे बच्चे ने। फिर देखो मम्मी कितने खुश होते हैं। बोलो, हे करुणा मम्मी, आपको ऐसा होने का है कि आपके बच्चे ऐसे हो जाए? हाँ। फिर वो पायल मम्मी बोलती नहीं है। हाँ, हाँ। ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि नहीं? हाँ। आप थक जाते कि अरे मैं इसकी गलती कहाँ ढूंढूं। श्रिया, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा है। ये तो आरुष, जैसा आपकी मम्मी उधर है? आरुष, आपकी मम्मी क्या उधर है? हाँ है। क्या बोलती है हाँ। मम्मी? तो ये भी इस पर नहीं है तेरी जी। He's upstairs. Yeah, Yeah, but upstairs with that spotlight. ये आ गए। हाँ, वो मम्मा का नाम क्या है? रिंकू। हाँ, रिंकू। हाँ, यस। रिंकू मम्मा को बोलो कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बोलो ना। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, उनकी आधा से ज्यादा एनर्जी बच्चों के पीछे लगी रहती है, नहीं लगी रहती है? बहुत। ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 3 गोल में पक्के होते हैं ना, आप सुबह में उठेंगे ना तो अपने आप you'll be happy and cheerful. what a wonderful day, ऐसा होगा। नहीं तो फिर से यही फिर से रिपीट होगा, ऐसा होगा। सुबह में उठते वक्त हैप्पी होते हैं आप लोग कि कंटाला आता है, नींद पूरी नहीं हुई आज मेरी, ठीक से नींद भी नहीं आई, और मम्मा ने आके उठा लिया। देखो दोनों हंसते हैं, अरुष भी हंसता है, श्रिया भी हंसती है, दोनों, मोनिका, खुशी, सब हंसते हैं। ऐसा है, उनको उठाने आए ना, अरे क्या बात है, बच्चे तो उठ गए। ऐसा किया है कभी आपने कि जाके हिलाना पड़ता है, ए उठो उठो? ऐसा करना है हमें। आज नहीं, आप लोग बड़े अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन दैट इज अवर गोल। और वो गोल सेंटर इज हैप्पीनेस, कि हम एवर हैप्पी एंड चीयरफुल रहे। तो हमें देखकर फर्स्ट हमारे डैडी मम्मी हैप्पी एंड चीयरफुल रहेंगे। वो तो बहुत बड़ा गोल है। ऑलवेज ये प्रश्न पूछने का अपने आप को, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे डैडी मम्मी हैप्पी होंगे कि नहीं? अगर आपको जवाब मिलता है नहीं, तो डोंट डू इट, कम व्हाट में। क्या समझ में आया? 8 नींद आती है अभी 9:30 बजे, खेलने को बोलेंगे तो 12 बजे तक खेलेगा, तब नींद चली जाती है। समझ में आया? ऐसा है, ठीक है? ठीक है, ओके। तो अभी हम पद सुनेंगे। ठीक,
खुशी दीदी पास में आके जोर से बोलना। हाँ जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मानां स्वपारदर्शन माणिकदाने नित्ये शुद्धात्मानां स्वपारदर्शन माणिकदाने गाने सूरज किरण ज्ञानी ने हर पर गुरु गुण गाने सूरज किरण ज्ञानी ने हर पर गुरु गुणम शुद्धात्माना स्वपरदर्शन माणिकदाने नित्ये पूर्णम् आत्मा प्रतिष्ठित सद्गुरु दर्पण दिव्य चक्षुरे अनात्मा स अर्पण आत्मा प्रतिष्ठित सद्गुरु दर्पण दिव्य चक्षुरे अनाथ सर्पण बिंदु संयोगम ओंकार नूल प्रत्यक्ष कल्पाप मोक्षादियातम शुद्धात्माना स्वपरदर्शन माणिकदाने नित्ये पूर्णम्। जय सच्चिदानंद। आपने बहुत बड़ा पद निकाला, अच्छा गाया। मालूम है इसको मीनिंग? दीपक दादा वो बोलिए। ये हमारे अंदर के जो दादा भगवान स्वरूप शुद्धात्मा भगवान है ना, वे कैसे हैं? वो खुद को भी प्रकाशित करते हैं और हमारे सारी क्रियाओं को भी प्रकाशित करता है। दर्शन यानी वो प्रकाशने का, दिखाने की शक्ति है। ये लाइट होती है ना, ये लाइट अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकती। इसीलिए क्या कहा जाता है, दिया तले अंधेरा होता है, ऐसा बताया है, ऐसा सुना है। दिया तले अंधेरा नहीं होता है। दिया तले का मतलब क्या है? अंडर द लैंप। समझ में नहीं आया? ये लैंप अगर ऐसा है और ऐसा जलता है तो उसके नीचे लाइट होती है? नहीं होती है। इसीलिए दिए को क्या कहा कि वो पर प्रकाशक है। वो दूसरों को प्रकाशित कर सकता है लेकिन खुद को प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन शुद्धात्मा का प्रकाश, शुद्धात्मा के दो मुख्य प्रकाश है। उसे दर्शन प्रकाश बोलते हैं और दूसरे को ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। दर्शन प्रकाश से हमें समझ में आता है। ये जो हमारी समझने की शक्ति है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, वो दर्शन प्रकाश से है। और ज्ञान प्रकाश से हमें अनुभव में आता है कि हकीकत क्या है। समझ पूरी होने पर वही दर्शन प्रकाश ज्ञान प्रकाश यानी अनुभव खुला करता है, एक्सपीरियंस, और हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। ये समझ में आएगा आगे। लेकिन मेन माणिकधारी नित्य पूनम यानी क्या है कि ये जो फुल मून होता है ना, डू यू नो व्हाट इज फुल मून? पूनम का चंद्रमा होता है ना। पूनम का चंद्रमा पता है आपको? पता है। हाँ, वो पूनम का चंद्रमा यानी हमारे मन, कोई भी संजोग में हमारा मन
व्याकुल होता है और उसको समाधान नहीं मिलता, इसीलिए हम परेशान होते हैं। और अगर हमने मन को पहचान लिया, समझ लिया, ये भीतर के शुद्धात्मा भगवान के प्रकाश से हम मन को, अपने ही मन को अच्छे से समझ लेते हैं, और अच्छे से समझ लेने पर कोई भी संजोग हमें परेशान नहीं करता। इसीलिए दादा भगवान के बारे में ये बताया है कि गुरु पूनम जो बताया ना, ठंडक आने सूरज किरण जो तो बताया, ठंडक सूरज यानी मन से ठंडक मिलती है और सूरज से ज्ञान होता है। सूरज वो हमारा बुद्धि का प्रकाश है, और मन है वह, उसको क्या बोलते हैं, मन का समाधान वो चंद्रमा देता है। और ज्ञानी को हर पल पूनम होती है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को समझ लिया है, पहचान लिया है, इसीलिए उनका मन को कभी परेशान करता नहीं है। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, ये दर्शना आपका मम्मी किधर गया, और पायल आपका मम्मी किधर गया? है? पायल का मम्मी तो ज्योति बहन है। ओह सॉरी, ओके ओके, आप ओके करुणा, पायल जस्ट स्टे, ओके रेस्ट। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, तो अभी पद में आया था दर्शन प्रकाश और ज्ञान प्रकाश। तो वो क्या चीज होती है, कौन बताएगा? शेबाई, पायल बहन, करिश्मा बहन, अभी दीपक दादा ने बोला है दर्शन प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, और हमारा दादा का आरती में वो बहुत आता है। दर्शन यानी जो दीपक आनंद जी ने बताया कि पूरी तरह से समझ में आ जाना, और जो दादा की दूसरी आरती है केवल दर्शन, यानी इस दुनिया में चाहे कुछ, मतलब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अगर इस जगत को अच्छा लगे या बुरा लगे, पोसाई या ना पोसाई, जो क्रिया में करता रहता है वही ज्ञानी पुरुष जो दादा भगवान है वही है। तो ये केवल दर्शन जो जैसे बोला है दादा ने कि दर्शन तो हमारा पूरा है, मतलब 360 डिग्री का ही है, लेकिन ज्ञान 4 डिग्री कम रहा था, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान जो है, मतलब तीसरी आरती में जो आता है कि स्वसंवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाश है स्वयं, मतलब अनुभव में जितना आएगा समझन से ज्यादा, तो अपने आप ही वो ऐसी शक्ति खिलती जाती है अंदर, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। और जैसा वो ठीक है, लेकिन ये तो अपना, ये आपने थ्योरेटिकल बोला, पर अभी ये अपना प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम करते हैं? दर्शन चीज क्या है, ज्ञान क्या है, और ब्रह्मांडी शक्ति क्या है, वो हाउ डू वी यूज इन एवरीडे लाइफ? नॉट पॉसिबल राइट नाउ फॉर मी। नो ऐसे मत बोलो भैया। नहीं, वो सही बात है। अभी तो क्या ब्रह्मांड प्रकाश करेंगे, अभी तो नो ब्रह्मांड प्रकाश, नो ब्रह्मांड प्रकाश व्यवस्थित शक्ति, कम ऑन, यू यूज दैट ऑल द टाइम, कम ऑन। ऑल द टाइम नहीं यूज होता है। व्यवस्थित शक्ति आप यूज नहीं करते दिन में? हाँ करता हूँ, लेकिन ऑल द टाइम नहीं होता है। कई सारे संजोग ऐसे रह जाते हैं जिसमें बाद में पता चलता है। तो what is ever, the thing is you're using it, that is the key, so don't say impossible thing, क्योंकि ये दर्शन ज्ञान और व्यवस्थित शक्ति we are using it all the day. प्रैक्टिकलिटी में कुछ बताओ पायल बहन, करिश्मा बहन, बाद में दीपक दादा आपके साथ बात करेंगे। ये 3 things तो we use it all the time, कि दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, व्यवस्थित शक्ति क्या होता है, क्योंकि हम वो तीनों
अपना डेली प्रेयर में, अपना आरती में आता ही है। एनी आइडिया पायल बहन, करिश्मा बहन को? दीपक आर्य की बात करेंगे आपके साथ। दीपक आर्य जी, प्रैक्टिकलिटी में बताओ कि हम ये दर्शन, ज्ञान और व्यवस्थित शक्ति कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो है, लेकिन ख्याल नहीं आते हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि ज्ञान मिलने पर हमें जवाब मिल गया है। दो महत्वपूर्ण जवाब है। पहला जवाब यह है कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। दूसरा जवाब यह है जगत चलाने वाली शक्ति वो व्यवस्थित नाम की शक्ति है, कुदरत की शक्ति है, वो कोई व्यक्ति नहीं चलाता। ये दोनों जवाब हमें मिल गए और वो दादा भगवान ने हमें बता दिए कि नहीं। यस, मैं शुद्धात्मा हूं, यानी मेरी सही पहचान, और ये सारा क्रिया वाला जगत है वो शक्ति चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता। मैं नहीं चलाता, भगवान नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता। बराबर है। अभी उसके पीछे समझ क्या है? समझ बिल्कुल अधूरी है। वो समझने की जो सारी यात्रा है वह देखने का पुरुषार्थ है। यानी देखने का पुरुषार्थ कैसे होता है? शुद्धात्मा का दर्शन उपयोग से हमें देखना है। देखने का मतलब क्या है? समझना है, पहचानना है। ये किनारा, निश्चय का किनारा मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं, वो दादा ने दे दिया है। दादा के योग बल से हमें मिल गया है। लेकिन मन, वाणी, काया, मन, वचन, काया और उनकी सभी अवस्थाएं, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसका कोई भी भाग मेरा नहीं है। वो पूरा समझना बाकी है, क्योंकि वही हमें आज भी परेशान करता रहता है। खुद के मन, वचन, काया और दूसरों के मन, वचन, काया, जिनके संपर्क में हम आते हैं, जिनके साथ व्यवहार होता है, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। और वो समझने के लिए दर्शन उपयोग ही महत्व का है। दर्शन उपयोग के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसीलिए हमें ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो परिणाम से खुला होने वाला ही है। लेकिन हमारी यात्रा जो समझने की है यात्रा, वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए समझते जाए, समझते जाए, समझते जाए। इसीलिए कहा समझ वो ज्ञान की जननी है। तो इसीलिए शुद्धात्मा का जो दर्शन प्रकाश है वो बहुत महत्व का है। इसीलिए कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त होना महत्व का है, सम्यक दृष्टि प्राप्त होनी जरूरी है। वही कृष्ण भगवान का सुदर्शन है, वही समकित है, वही सम्यक दर्शन है। ये बात है। और ये जब हो जाता है, इसी का उपयोग करना है हमें। देखते जाओ, समझते जाओ। और क्या देखने का है कि किस तरह से कोई भी क्रिया होने के लिए सब पुरावे की जरूरत है, एविडेंस। सब एविडेंस इकट्ठे होते हैं और कार्य हो जाता है। और हम कोई एक व्यक्ति को पकड़ के गला दबाते, उनको गला पकड़ते, आपने किया करके। और मैंने नहीं किया, मैं आपने ही किया। कोई अकेला करता ही नहीं है, कोई अकेले से होता भी नहीं है। इसीलिए कहा है फेडरल कॉजेज इकट्ठा होकर जो कार्य होता है वो व्यवस्थित है। वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा, संयोगिक पुरावा का ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम ढंग से संयोगिक पुरावा भी नहीं देख पाते। उसमें भी हम इतने
उसको क्या बोलते हैं, मान्यता और अभिप्राय से ग्रहे हुए हैं। अभिप्राय का ग्रहण होने से हम जो देख सकते हैं ऐसे पुरावे को भी समझ नहीं पाते। तो जवाब, पूरा जवाब तो वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा में है। तो ये वैज्ञानिक की बात तो फिर कैसे आएगी, लेकिन वो धीमे धीमे करके आएगी। लेकिन आज हमें संयोगिक पुरावा को अच्छे से समझ के क्रिया का समाधान लेना है, अपने भुगतान का समाधान लेना है। वैसे उधर भी जवाब दे दिया है, भुगतने वाले की गलती है, लेकिन वो जानने के बाद भी हम ये प्रश्न करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, व्यवहार से तो ये ठीक नहीं है ना, ऐसा तो कोई होता है भला? नहीं होता है ऐसा? होता है। और हमारी बुद्धि ये आरोप करने के लिए उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये व्यवहार का एक क्या बोले हिस्सा पकड़ के टूट पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें बड़ी गहराई से, शांति से अपना स्वाध्याय कर लेना है कि ये पुरावे को समझो, पहचानो। और सबसे बड़ा पुरावा यह है कि भुगतने वाला मैं हूं। फिर मैं हूं यानी उसमें दो मैं आता है। एक जो अनजाने में अजागृति से हम भुगत लेते हैं, इसकी असर में आ जाते हैं, वो हमारी गलती है। और फिर जिनकी गलती है उसके ढंग से, अच्छे से, समझ से उनको पहचान लेना है कि वो भुगतने वाला मैं नहीं था। मुझे तो पता चला कि अरे किसी को भुगतान हुआ, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वहां तक हमारा जजमेंट पहुंचता नहीं है। जजमेंट समझते हैं ना, बुद्धि का निर्णय वहां तक नहीं आता है। वो तो सामने पर ही डालते हैं, उनके लिए, उनके कारण ही मैं परेशान हुआ। क्यों? क्योंकि आप खुद करता हुए, भुगतान के करता हुए, भुगतने वाले हुए, ये बहुत सूक्ष्म बात है। भुगतने वाले, भुगतान के करने वाले हम हो गए। समझ में आया? यस। ये समझ में, पकड़ में आएगा ना, फिर मजा आएगी। आप समझ में नहीं आया? हाँ, करुणा जी हाँ नहीं बोलती है, पूजा नहीं हाँ आया बोलती है। आया। अभी तो कंपलसरी यहाँ बोलना ही पड़ेगा। नो ऐसे तो श्रेय भाई हमने बोला ना, यू नो दिस प्रैक्टिकलिटी में अपना कस्टमर इफ ही कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये तीनों यू कैन यूज इट ना, दर्शन, ज्ञान एंड व्यवस्थित शक्ति के यूज करते हैं ना, तो करना मांगता है। यस करते ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए अक्रम विज्ञान को प्राप्त किए, अभी भी जिस हिसाब से प्रोग्रेस होनी चाहिए, आप जाना चाहिए, नहीं जा रहा है। नहीं पर ऐसा ये प्रैक्टिकल है ना, ये समझने का है ना, ये प्रैक्टिकल। देखो ये इसलिए ये 3 शब्द तो हमने बहुत ऐसे सोचा है, दर्शन, ज्ञान एंड व्यवस्थित शक्ति। इफ यू सी एवरी टाइम कस्टमर आया, ओके, और दर्शन, ओ कस्टमर आया, देन यू से ज्ञान, ओ शुद्धात्मा है, क्यों आया, सर्कमस्टेंसेस आया, देन यू से संभाल निकाल कर, देन यू आर डन ना। यस यस। या मैं ऐसे जैसा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन क्योंकि दिस 3 शब्द हमने देखा ना, तो हमको सब याद आ गया कि प्रैक्टिकलिटी में पुट नहीं करना ना। हाँ यस करेक्ट। या क्योंकि ये तो हम दीपक दादा एवरीडे आरती में तो हम गाते हैं, क्या करते हैं? आरती में तो हम गाते हैं ना। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा ना। हाँ इसलिए बोला ना, देखना तो पड़ेगा, ये बाद जब सामने आता है तब। इसीलिए देखो बहुत गर्म होता है,
तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गर्म होता है वो इंद्रिय ज्ञान से पता चला कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पता चला? इंद्रिय। अतीन्द्रिय ज्ञान से तो उसकी जानकारी होती है बस, इंद्रिय ज्ञान से ही भुगतान है। अब ये सही। पकड़ में आएगा ना तो फिर और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। वही वही मैं कह रहा था कि अभी ये छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहते हैं, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, मुझे और भी बढ़ना है लोग- आगे, ऐसा बोलना है, मुझे बढ़ना है। दादा शक्ति दो अभी मुझे, अब हाँ मुझे बढ़ना है। आपके पीछे पीछे बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना है, फिर करेक्ट। देखो मजा आएगी। एक एक बात उनकी ऐसे ही अंदर विस्फोट करेगी समझ की। ये समझ का विस्फोट होना बहुत जरूरी है करेक्ट। कि उन्होंने क्या कहा था, अरे इसका मतलब ये होता है, ओहो वाह 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 दादा वाह। फिर देखो आगे कैसे बढ़ते हैं हम। राइट। चलना है। हाँ और जैसे आईना जब दिखाता है तो वो परेशान होता है, नहीं। ऐसी स्व यानी मैं शुद्धात्मा हूं, मेरी संवेदन शक्ति है देखने जानने की, और वो देखने जानने में रहे तो संवेदन खड़ा होगा, संवेदन खड़ा होगा। यस। और वो संवेदन क्या है, हमारा परमानंद खुला करता है, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस। राइट। ऐसा है। देखो श्रेय भाई, ये हमको भी प्रॉब्लम था, ये दर्शन ज्ञान और व्यवस्थित से ये एवरीडे आरती में बोल कुछ समझ नहीं आता, यू नो। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। बाद में ये इतना सत्संग में बैठे तो एवरी टाइम आप तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बताते हैं ना। हाँ तो बाद में फाइनली क्लिक किया कि ये दर्शन ज्ञान और क्या होता है, ऐसे लाइक दिस, अंडरस्टैंडिंग वेरी सिंपली एवरी इंसिडेंट एवरी हाँ देन। वही वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि अभी तो उसने मेरा ये कर दिया, उससे मुझे ये प्रॉब्लम है, इससे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा है, यू नो। नहीं आ जाएगा आ जाएगा, ये ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है ना, ये तो आ जाएगा। राइट दीपक दादा? नहीं, लेकिन उसको उसको आप काउंटर क्वेश्चन पूछो ना, उसने ही किया तो उसको ये टाइम ये प्लेस उन्होंने डिसाइड किया, और चलो उन्होंने किया, जो करते हैं उनको दुख होना चाहिए ना, लेकिन दुख तो आपको हुआ। हाँ वो तो है। देयर इज सम पजल, देयर इज समथिंग इज मिसिंग। कोई और करे और कोई और भुगतान करे, वो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। यानी करने वाला कुछ और है, करने वाला दिखाई देता है फिर भी वो करता नहीं है। हाँ तो राइट। कैसे करता नहीं है ऐसा हमें सिद्ध करना पड़ेगा, करेक्ट। एज वन ऑफ द एविडेंस ओनली, बट द सोल एविडेंस इज ऑफ द सफरर। यस। जो भुगतते हैं उनका मेन एविडेंस है। हाँ जैसे वो सारे एविडेंस में महावीर भगवान तो साधना में बैठे हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, वो आके बोलते हैं मेरे बैलों को संभालना भाई। तो फिर अंदर से महावीर भगवान बोले मैं तो ये वर्धमान को संभाल रहा हूँ, आपके बैलों को मैं कैसे संभालूंगा। फिर भी वो तो बोल के चले गया, ना लेना ना देना। और फिर भगवान में थोड़ी देर के बाद आके बोलते कहा है मेरे बैल। तो भगवान ने कहा मैंने कहा नहीं था कि मैं आपका बैल संभालूंगा, लेकिन उन्होंने बाहर कुछ नहीं बोला। राइट राइट। बाहर कुछ नहीं बोला, बोले मैं तो ये वर्धमान को संभाल रहा हूँ कि इसको क्या होता है वो देख रहा हूँ मैं। और फिर उसको गुस्सा आया, भगवान ने कुछ बोला नहीं ना, अब बोलते नहीं बहरे हो गए हो, मैं क्या बात करता हूँ सुनाई नहीं देता है। वो बाद में वो थे कान में डाल दिया। राइट। भगवान को तुरंत दिखाई दे दिया, ओ हो वो तभी ये जो गलती हुई थी आज उसका हिसाब पूरा हो गया। बिल्कुल।
लेकिन वह उनका आखिर का जन्म था, चरम शरीर था। तो चरम शरीर सामान्य तौर पर उनकी मन मानी कहा कि कोई गलतियां दिखाई दे ऐसी होती नहीं है, क्योंकि वो आखिर के जन्म में जो कर्म की भूमिका है ना, वो संज्वलन की होती है। संज्वलन यानी अब प्रतिक्रमण करना भी नहीं रहा। वो देखो और जाए, देखो और जाए, यानी उसको पहचानो और वो चले जाए। लेकिन अपने तरफ से कोई ऐसा प्रतिभाव आता ही नहीं है, बोलने का, कहने का। चेहरे की रेखा भी बिल्कुल बदलती नहीं है, क्योंकि मन बिल्कुल स्वस्थ हो गया, एक्सेप्टेड, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। और प्रकृति की सहजता ऐसी होती है कि जब भगवान से वो किले निकाले गए तो उनसे चीख पड़ गई थी। वो प्रकृति की सहजता है कि कोई भी ऐसा भुगतान होता है तो उसका परिणाम आता है। बिल्कुल, ये समझने का है, तो फिर मजा ठीक आती है। है। एवरीबॉडी, यस, करुणा बहन, पायल बहन, उषा, पूजा बहन, ये 3 शब्द तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है अपने लिए, तो जरा सोचना। ओके, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। पता नहीं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। 1 मिनट। ओके, हाँ जी, 1 मिनट। ओके, शेयर। हाँ, 1 मिनट। हाँ जी, ये पद है दादा तमारी वाणी त्रिकाली, CD 72। इसमें जो दादाजी बताते हैं वो बताते हैं, कबीरदास जी दादाजी के गुण जो है वो 4 जो मुख्य गुण है वो बताते हैं। निश्चल, गंभीर, संबंध और सूरज के जैसे और चंद्र के जैसे। फिर ये है सर्व एक की मुद्रा, स्वगुणधारी, पूर्ण अर्थ प्यारी। ये थोड़ा समझा। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा तो आवाज आएगा ना। अच्छा, सर्वैक्य की मुद्रा, यानी सर्व को एक करे ऐसी उनकी वाणी है। ख्याल में आया? मुद्रा मतलब वाणी के अर्थ में है। वाणी मूल वाणी की बात है। मुद्रा तो वो शरीर का होता है ना जो। हाँ, शरीर का होता है, लेकिन उनकी वाणी की बात है ये। सर्व को, सभी को एकता लाए ऐसी उनकी स्वगुणधारी यानी आत्मा के पक्ष की यह वाणी है जो स्पष्टता करती है सभी तत्वों का। पूर्णार्थ प्यारी यानी पूर्ण दर्शन यानी समझ दे ऐसी उनकी वाणी है। पूर्ण अर्थ मतलब कि वो पूर्ण अर्क यानी जिसका पूरा जवाब हमें मिल जाता है, तो फिर वो ऐसी प्यारी वाणी है। वो अर्क दे देते, एसेंस दे देते हैं पूरा जो है। यानी उसका मेन मूल क्या है। और फिर ये पैराग्राफ है, दादा ने चढ़ने गर्दन झुकावी, ने मौत बीजे तलवार तानी, अंतिम बंद की ईश्वर कबूले सच्चा नमन। ये वाला ऐसे दादा जो हमें मिले
जिनकी वाणी ऐसी है, तो वहां पर हमारा मस्तक ऐसे ही झुक गया। तो दादा के चरण में हमने गर्दन झुकाया। ने मौत वींझे तलवार ताणी। हमारी मौत कभी आ जाए वो कह नहीं सकते ना। जैसे हवा बहती है ना, ऐसी बोले वो तलवार जैसे हमारे ऊपर पड़ी है, ऊपर ही है और वो हिल रही है, कभी भी गिरेगी। डैंगलिंग स्वॉर्ड बोलते हैं ना, ऐसी मौत ऊपर है। ये बात है। अंतिम बंदगी ईश्वर कबूल है, यानी अंतिम प्रार्थना भगवान भी कबूल करते हैं। वही सच्चा नमाजी, यानी जिन्होंने दादा को पहचाना है। अंतिम बंदगी मतलब अंतिम प्रार्थना। हाँ, वो तो ट्रांसलेशन है, लेकिन क्या होता है वो अंतिम प्रार्थना? यानी अभी क्या है, मुझे मोक्ष में ही जाने का है। अच्छा, वो तो मौत कभी भी आ जाए तो मैं तैयार हूँ। वो मरने वाला ही मैं नहीं हूँ, तो क्या करूंगा अभी। तो वही सच्चा नमाजी, सच्चा नमाजी। यस, हाँ। यानी सच्चा नमाजी ऐसा दादा भगवान ने हमें बनाया एक्चुअली। अच्छा, और लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पूछता हूँ। वितराग पूर्ण जेने मेले छे, अनंत भवांतक मोक्ष फले छे, उपयोग सतमय जागृति राखे परमात्राही। ये उसका मतलब क्या होता है कि वितराग पूर्ण, जिनको ऐसे पूर्ण वितराग मिल गए, वो अनंत, ये क्या लिखा है? अनंत, वो अनंत है, अनंत नहीं, अनंत। हाँ, तो कविराज यानी आखिर तक, भव के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला है। जिसका मतलब अनंत मतलब वो ये इसका एंड नहीं आने वाला है, ये इसका एंड आने वाला नहीं है, लेकिन भव का एंड आएगा, लेकिन वो आखिर तक रहेगा। भगवान भव के अंत तक रहेगा। अच्छा, ऐसा वितराग विज्ञान में मिलेगा। ये मोक्ष जो जो है, फले छे, जो मोक्ष का फल ही देता है। तो मतलब कि वो मतलब विदेही दशा की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि आखिर तक यह वितराग हमारे साथ रहने वाले हैं। यह वितराग विज्ञान हमारे साथ रहने वाला है, जो हमें मोक्ष फल देकर ही रहेगा। अच्छा, अनंत और हाँ, वो अंत वाला नहीं है। और किसी ने पैसा दिया तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये वितराग विज्ञान ऐसा है, वो कभी अंत नहीं आए, ऐसा है, अनंत है। जी, ठीक है। और मतलब हमारे जब तक, मतलब हमारे साथ हमेशा रहेगा, भाव के अंत तक। हाँ, यस। उपयोग सतमय जागृति राखे, और जो ऐसे परमार्थ राही है, जो ऐसे राह पर चलते हैं, उनका उपयोग हमेशा सत यानी शुद्धात्मा का उपयोग रहता है। बिल्कुल जागृत रहते हैं, ऐसा बताया है। परमात्राही दादाजी को बोला है? नहीं, परमात्राही हम हैं। दादा भी परमात्राही है, लेकिन ऐसी वाणी जिनको सुनने मिली, ऐसा वितराग विज्ञान जिनको मिला, वो कैसे हो जाते हैं? परमार्थ राही हो जाते हैं, यानी मोक्ष के राही हो जाते हैं। जो सतमय उपयोग जिनका, यानी शुद्धात्मा का उपयोग अविरत उनका रहता है, और बिल्कुल जागृत रहते हैं। कोई अवस्था मोक्षज फले जो आपने बताया, मोक्षज फले, वो मतलब कि मतलब ये ज्ञान का परिणाम की बात करते हैं? मोक्ष, ये ज्ञान परिणाम और उनकी वाणी, जिसके पर ये पूरा पद है ना। अच्छा, उनकी वाणी। हाँ, एक और चीज मैंने पूछना था, वो भजन माल जो शब्द आता है, भजन माल, वो क्या? भक्ति करने योग्य, भजन माल यानी भक्ति करने योग्य।
माला वो माल तो मतलब माला होती है, तो भजन की माला जो है माल नहीं है, माल 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 भजन माण यानी जिनका भजन करने से, जैसे वो बताया ना वीतराग भजनम भजन माण 12वें गुण स्थान, यानी वीतराग जो जिनका हम भजन करते हैं यानी जिनका आराधन करते हैं वो 12वें गुण स्थान वाले होते हैं। वो पहले सेंटेंस में जो बताया ना, भजन माल सामाय भजन माल सामायिक गहन, यानी भजन माल क्या होता है? ये यानी ये जो प्रकट है यानी ये जो प्रकट है, भजन मार्ग यानी जो भक्ति करने आराधना करने योग्य है वो क्या बताया, भजन मार्ग सामायिक गहन, इनका सामायिक बहुत गहन है। मतलब वो दादा भगवान के बारे में बोल रहे हैं, दादा भगवान वो भक्ति करने की योग्य है, उनका सामायिक गहन मतलब क्या बोल रहे, सामायिक के बारे में? उनका सामायिक ऐसा है कि जो फिर आगे बताया ना सब सामायिक मतलब वो सामायिक मतलब क्या? यानी कि उनके साथ का जो 1 घंटे का समय आप गुजारते हैं वो बहुत गहन है। वो एक बार अगर आपको वो समय निकला, इनफैक्ट ज्ञान विधि की बात तो और ही है, हमने ये देखा है कि जो लोग बड़े परेशान है, कोई ना कोई समस्या से ग्रहे हुए है और दादा के पास आते हैं, वो 1 घंटा बैठते हैं ना, उनके मुख की रेखा बदल जाती है टोटली। वो जो परेशान होकर आए थे, चिंता ग्रस्त बोले ना, वो पूरा बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, क्वेश्चन नहीं है तो हम आपको क्वेश्चन करेंगे अभी। तो आप तो कितना दिन से बाद आया अकेले? मैं तो आता ही था। आप कैसे देखते, क्या करते हैं आप? महात्माओं किधर गलती करते हैं? नहीं, महात्माओं की गलती करते हुए मैं नहीं देखता हूँ। नहीं, तो गलती नहीं, चुक जाते हैं। नहीं, मैं तो मेरा दिखता रहता हूँ। ओके, तो बोलिए। महात्मा तो सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। क्योंकि कोई कैसे भी हो, हमें जैसे लगते हैं ना, ऐसा हमारा व्यवहार बनता है। वेट क्या? जैसे दादा भगवान के पास तो सब लोग आते थे, लेकिन दादा बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहते थे, बिल्कुल उनका मुक्त हाथ से कभी जाता नहीं था, वो कभी परेशान नहीं होते थे। फिर अगर ऐसा कुछ गलती कर देते हैं तो बोले ऐसा मत करो, बहुत विराधना होती है, विनय टूटता है। ऐसा बड़ी शांति से वे उग्र होके भी नहीं बताते थे। वो कई बार नटू काका ऐसा कुछ बोल देते थे तो बोले अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। फिर वो भी ऐसे थे ना, वो पलट जाते थे, अब मेरी गलती हो गई करके बोल देते थे। ये बात है, हमें है ना, मेरी समझ में ये आता है कि दादा भगवान को हम मिले हैं, जो नहीं मिले उनको दादा भगवान का ज्ञान का योग मिला है, यानी उनको दादा भगवान ही मिले हैं। दादा भगवान के इतने सारे महात्मा और उनका अनुभव मिला है, तो उनको दादा भगवान का स्वरूप तो पता चला है, कुछ अंश से बहुत अंश तक। इसीलिए हमें ये समझ से जीना है कि कोई भी उपयोग लेके आए, हमारा उपयोग ऐसा हमें कर देना है। दादा भगवान की कृपा है, हमारा निश्चय जितना बलवान रहता जाता है, तो सामने वाले का कोई उपयोग आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता।
आपको आने का परेशान करने का, तो उनका गला बंद हो जाता है, बोलने की कोशिश करें ना तो भी वो नहीं बोल सकते, और समझो बोल दिया तो आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो ये समझदारी से जीते हुए बड़ा मजा आता है, दादा भगवान का स्वरूप समझ में आता है। जैसे दादा भगवान ने बताया कि आपको तो करना नहीं है, कषाय नहीं करना है, लेकिन आपके निमित्त से किसी को न हो, ऐसे जागरूकता से हमें जीवन जीना है, ताकि हम किसी के निमित्त ना बने। हम तो ना करें, लेकिन हम किसी के निमित्त भी ना बने। ये महात्माओं की, आप्तपुत्रों की भूमिका के लिए उन्होंने बड़े आग्रह से कहा था कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो बोलना नहीं, समझ में नहीं आता करके बैठ जाने का। लेकिन समझाते हुए अंदर उग्रता आती है, वाणी कड़क होती है, वो क्या क्या नहीं होता है, दिमाग खराब हो जाता है। जो कोई आराम से दूसरा तीसरा व्यक्ति भी देख सके, समझ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वितराग भगवान की पाठ है। तो यहाँ से ये बात तो जानी ही नहीं चाहिए, कम व्हाट में। इसीलिए दादा बाबा ने कहा था, अगर आप समाधान ना दे सके, वो हो सकता है, सभी को समाधान देना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसा दादा का विज्ञान है, लेकिन आप उनको दे न पाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनको मिलना ही चाहिए, और क्यों नहीं, और ऐसा करके आप समझते नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें समझाना चाहिए। अगर हम नहीं समझा पाते हैं तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए कि मेरी क्षमता के बाहर है, ऐसा है। एक बात बताता हूँ, एक बार हम सत्संग के लिए गए थे, और वहां पर वे अंधश्रद्धा रोको आंदोलन वाले थे। अंधश्रद्धा रोको आंदोलन वाले थे। वो बार बार हमें पूछ रहे थे कि मुझे आत्मा की प्रतीति कराओ। हमने अपनी क्षमता समझ से सब बताने की कोशिश की, फिर भी वो बोले इससे आत्मा की प्रतीति सिद्ध नहीं होती है, ऐसा करके उन्होंने बताया। फिर हमने कहा हम सरेंडर करते हैं, आपको हमारे गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो आप हमारे गुरु से पूछ लेना, वो आपको समाधान दे देंगे, मैं आपके लिए समर्थ नहीं। ऐसा कहने में क्या हर्ज है? आप समझ नहीं रहे, आप एक ही रट पकड़ के बैठ गए हैं, ये है वो है करके, नहीं, वो गलत बात। ऐसा है, इसीलिए समाधान ना दे पाए, वो हो सकता है, लेकिन कसाई तो कभी भी होना नहीं चाहिए। यानी कसाई हमें पकड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कसाई, डिस्चार्ज कसाई धीमे धीमे ऐसे संयमित हो जाने चाहिए, और दादा की कृपा से ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए हमारे पास जवाब है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि सभी के लिए हम निमित्त बनना ही चाहिए ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। दादा भगवान ने खुद बताया है, उनका खुद का अनुभव भी बताया है कि कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि ये पटेल सभी के निमित्त बन सकते हैं। भावना है, भावना अलग बात है, और निमित्त बनना अलग बात है। तो इस तरह से हमें हमारे डिस्चार्ज कसाई को, और खास करके ये जो राग द्वेष, यानी सभी संजोगों में या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये दो परिस्थिति का सामना हम हर समय करते हैं। एवरी मोमेंट, एवरी सिचुएशन, हर संजोग में
उसका यह रिजल्ट आता ही है, या अच्छा लगता है या बुरा लगता है। लेकिन वो अच्छा जिनको लगता है उसे अच्छे से पहचानना है, जिसको बुरा लगता है उसे भी अच्छे से पहचानना है। तो हम अच्छे बुरे का भुगतान करने वाले नहीं बनेंगे, तो सामने वाले निर्दोष दिखाई देंगे, नहीं तो सामने वाले कर्ता दिखाई देंगे ही। अगर उस भुगतान के करने वाले आप हुए तो वो भुगतान के कराने वाले हो ही जाएंगे। रन्नी भाई, ये ख्याल आया? हाँ हाँ, यस। अगर उस भुगतान का करने वाला मैं बनता हूँ, राइट, तो सामने वाला भुगतान का कराने वाला बन जाता है, कर्ता बन जाता है, और फिर इसके पीछे सब अंधेरा छा जाएगा। फिर आप, हमारे पास बुद्धि तो ऐसी है ना कि वो कहीं ना कहीं से समाधान ढूंढ ही निकालती है, और कुछ न कुछ करके सामने वाले को दोषी ठहराएगा, वो ठहराती है। इसीलिए वहां हमें बहुत जागृत रहना है, और ऐसी परिस्थिति में मौन हो जाना सबसे अच्छा है। और हमें अंदर से दादा से प्रार्थना कर देना चाहिए कि मुझे यह परिस्थिति को समता भाव से उसका समाधान, निपटारा करने की शक्ति दो। ऐसा करके समय को धक्का मार दो एक बार, फिर देखा जाएगा, लेकिन बोल के हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन लेगा। राइट, कीर्ति बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। જય जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે હમણાં થોડી વાર પહેલા કહેવું કે સ્વ સંવેદન શક્તિ થોડું વધારે સમજવું હતું, અને સ્વજલન અને સ્વ संवेदन शक्ति। तो जलन कहाँ से आया? आप बोले थे अभी थोड़ी देर पहला तो के जलन तो मुझे नहीं मालूम कि मैं बोला होगा। ओके, सॉरी। ओके, स्व संवेदन शक्ति यानी मैं और संवेदन, समवेदन, बैलेंस वेदन, यानी कर्म के परिणाम से अच्छा या बुरा लग सकता है। वो जिनको लगता है उनको हम अच्छे से पहचानते हैं। कीर्ति बहन को अच्छा लगा, कीर्ति बहन को बुरा लगा, तो उनके विषम परिणाम में, इसी से विषम परिणाम कहा, अच्छा बुरा लगना। उसमें हमारा संवेदन रहता है, यानी हम आई संवेदन में, यानी देखने जानने की प्रक्रिया से हम संवेदन में आते हैं, आ जाते हैं। देखने की प्रक्रिया, देखने की यानी पहचानते हैं कि ये कीर्ति बहन को अच्छा लगा, कीर्ति बहन को बुरा लगा। वो तो लगता ही है ना, हर संजोग, हर परिस्थिति में अच्छा बुरा लगता ही है, लगता है। वो कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम किसको भी नहीं छोड़ता। वहां पर हम उसे देखते हैं, यानी समझते हैं, पहचानते हैं कि ये मेरा वेदन नहीं है, ये 5 इंद्रियों का वेदन है। हाँ। तो जैसे 5 इंद्रिय तो हमारी नहीं है, वो तो कीर्ति बहन की है। हाँ। तो उनको ये हो रहा है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। समझ में आया? बोले ध्यात होता है, ज्ञात जानने में आता है। हाँ, जानने में आता है। और वो ऐसी जानकारी में हम रहते हैं तो अच्छा या बुरा के बहाव में, फ्लो में हम नहीं खींचे जाते हैं।
हम वो दोनों परिस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। ये धीमे धीमे यह परिणाम, हाँ सॉरी गुजराती में बोले आप बोलिए गुजराती में, आप बोलिए। हाँ तो त्यारे तमने ए स्थितिमां तमने નથી થતું મને એવું રહેવું તો જ જાણ્યું કહેવાય ને, તો જ હું ये समझ से पता चलता है, क्योंकि 5 इंद्रिय और 5 इंद्रियों को दीपकान जी, मैं इंद्रिय ज्ञान वाला शुद्धात्मा हूँ। We lost you. થોડું કટ થઈ ગયું. मैं अतीन्द्रिय ज्ञान वाला शुद्धात्मा हूँ। ओके, ख्याल में आया? हाँ। ये ज्ञान, क्योंकि मैं स्वाभाविक ज्ञान वाला हूँ कि नहीं है? स्वाभाविक ज्ञान मेरा है? नहीं है। हाँ, 5 इंद्रिय का ज्ञान वो विभाविक ज्ञान है। ओके, 5 इंद्रिय। विभाविक ज्ञान को देख सकता है, जान सकता है। ओके ओके। जैसे एक मिनट, जैसे केवल बोलता है दादी हाथ पैर बहुत दुखता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि केवल का पैर दुखता है। राइट, हाँ। उसी तरह से जब कीर्तिबेन बोलते हैं कि आज थोड़ा ज्यादा चल लिया तो पैर दुख रहे हैं, बराबर, तो वैसे ही जैसे केवल के पैर दुखते हैं, ऐसे कीर्तिबेन के पैर दुखते हैं। मेरे तो पैर ही नहीं है, तो ऐसा एनालिसिस करना है। जैसे वो कर्म का मैथमेटिक्स है ना, ये मैथमेटिक्स है ना, ऐसा ये मैथमेटिक्स है। क्या मेरा नहीं, मेरी रकम कौन सी और मेरी कौन सी नहीं, उसको पहचान लेना है। पहचान, हाँ, और वो दर्शन शक्ति से हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि यह भुगतान मेरा नहीं है, मेरा तो संवेदन वाला है। मेरी शक्ति स्वसंवेदन वाली शक्ति है, संवेदन करा है। संवेदन बैलेंस करावे आपने। संवेदन यानी उसकी असर नहीं होती है, उसका सिर्फ जानकारी होती है, बैलेंस नहीं करता है। बैलेंस सम क्यों? क्योंकि वो विचलित नहीं करती, इसलिए। ओके। वो वेदन देखना जानना ऐसा है जो देखने जानने से यानी समझने से, वो ज्ञात होने से उसकी असर हमको नहीं होती है। लेकिन उसका ज्ञान होता है। जैसे आईने के सामने आप सर दुखता है, तो वो तो बताएगा ना, आईना बताएगा। लेकिन आईने को कुछ नहीं होगा, आईना बताते हुए भी उसको कुछ नहीं होता है। आईने के सामने बोला आज मैं बहुत खुश हूं, तो आपकी खुशी से वो खुश नहीं होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि कीर्तिबेन आज खुश है। ऐसा हमारा शुद्धात्मा स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव है, वो मैं हूं, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। हैंडल मारने का है, रात दिन ये विभाव का हैंडल लग गया है अज्ञानी लोगों के परिचय में आने से। बराबर, वो ऐसा ही बोलते हैं, ये दुखता है, वो दिखता है, आज उन्होंने ऐसा किया, आज उन्होंने वैसा किया करके वो बोलते ही रहते हैं। और हमें भी आदत पड़ गई, तो वो वाणी हमारे के अंदर भी आ गई। लेकिन अब हम जागृत हो गए, दादा ने हमें जागृत कर दिया है। वो वाणी मेरी नहीं, वाणी आत्मा का गुण है ही नहीं, आत्मा का गुण है ही नहीं। तो वो जो भी बोले, जो भी बोले, वो मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी उसके सामने बैलेंस करने के लिए शुद्धात्मा के गुणों की वाणी है। हाँ है, वो है। क्या
अभी दादा तो ने वो- कहा कि उसको मैं पार कर चुका हूं, मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बोलने की जरूरत है। मुझे है यानी आप है ना महात्माओं को, हाँ बॉडी में हम એમાં કે महात्माओं को बोलने की जरूरत है, क्योंकि शब्द की असर अभी भी है हमें, इसीलिए उसका काउंटर शब्द दिया है। ये सब आत्मा और आत्मा के गुण जो है ना, हाँ वो उसकी काउंटर शब्द है, counter ताकि उसकी असर में से हम निकल आए। હા वो એ પણ સાંભળ્યું છે કે છે કે તમારા sentences અને each word and a sentences should start with the positive only. Start with the positive. कहाँ लिखा, कहाँ सुना? वो सुनना है, वो अंदर बराबर करवू छ नहीं, क्योंकि बानी टेप रिकॉर्डर है, तो आप बोलेंगे कैसे? ये तो कैसी बात हो गई, गलत मत बोलो, सही बोलो। लेकिन हमें कैसे पुरुषार्थ में रहना है? जब जब ऐसा नेगेटिव बोला जाता है, यानी जब जब ऐसा नेगेटिव हमारी टेप रिकॉर्ड बचती है, तो उसके सामने में पॉजिटिव बोलना है, उपयोग से। हाँ, ताकि उस नेगेटिव की असर हमारे पर ना हो। इसीलिए कहा कि 5-25 बार मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं करके बोलो। हाँ, आत्मना गुण, राइट। तो वो जो असर बानी बोलने से, यहीं से बानी निकलती है और यहीं जाती है और परेशान करती है, तो उसके सामने हम काउंटर उसका वो करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सरस जय सच्चिदानंद। जय दीपिका जी, अपना टाइम हो गया है, तो वेरी क्विकली गीता बहन का क्वेश्चन। ओके ओके, यस डेफिनेटली। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंदजी साहेब, આ સમજાવો ને, આધીનતા બહુ સારી વસ્તુ છે. દાદા ભગવાન કીધે અમે બધાને આધીન રહીએ છીએ. આધીનતા એટલે સંપૂર્ણ નિરઅહંકારતા. તો એ થોડું સમજાવો ને સાહેબ. आधीन रहे, जो आधीन रहते हैं उसको क्या चिंता होती है? नहीं। आधीन निरअहंकारता। अहंकारी आधीन नहीं रह सकते, और जो आधीन है वो अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। हाँ। मुझे क्या करना क्या है वो है ही नहीं ना कुछ, आप बोलो मुझे क्या करना है। जिनको अधीन हो उनको जो कहे वो आपको करना है। वो बोलते चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर, तो आपको ऐसा नहीं कहा मुझे चुपचाप बैठे रहने को कहा, जैसे आप किया गया। और अधीन हुए तो आपका काम हो जाता है। ये सारा पुरुषार्थ जो करना है ना, वो अधीन होने का ही पुरुषार्थ है। एक बार अधीन हो गए तो वो आज्ञा ही आपको मोक्ष में ले जाएगी। लेकिन आज्ञा भंग होती है, वो क्या बताती है? अब आज्ञाधीन है कि नहीं है? आज्ञाधीन, दादा भगवान की आज्ञाधीन है। आज्ञा छूट जाती है तो क्या बताती है कि आप आज्ञा में है कि नहीं? मैं आज्ञा में हूँ लेकिन छूट गई आज्ञा। आज्ञा में तो हूँ मैं, आज्ञा में हूँ लेकिन छूट गई, तो वो आज्ञा कैसे कही जाएगी? समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। जो आज्ञाधीन है ना, वो कभी आज्ञा तोड़ेंगे ही नहीं ना। ना, कभी नहीं तोड़ेंगे हम, क्योंकि आज्ञा में रहने में उनको इतना आनंद आता है कि वो छोड़ ही नहीं सकते। हाँ जी। लेकिन क्या है, हमें ये जन्म में आज्ञा मिली है, इसीलिए टूटने की सभी संभावनाएं होती है। हाँ जी। लेकिन ऐसे करते करते जब आखिरी भव आएगा ना, वहां हम आज्ञा स्वरूप होंगे। जैसे दादा भगवान ने कहा, हम आज्ञा स्वरूप हो गए हैं।
स्वरूप आज्ञा में ही रहते हैं, करेक्ट। क्योंकि वो बहुत मार खा के ये परिणाम खुला है। अभी हमें मार खाने का बाकी है, नहीं अभी नहीं थोड़ा बाकी है। थोड़ा झटका लगने का बाकी है। ये आंकड़ा तोड़ने से क्या मार पड़ता है वो अभी बाकी है। फिर हमारी आंखें खुलेगी कि नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ भी हो मुझे आज्ञा में ही रहना है, कम वक्त में। अभी वो ऐसा निश्चय पोक्कल है, पक्का। पोक्कल पक्का नहीं, पोक्कल है, पोक्कल पोकड़ है, पोकड़ पोकड़ पोक्कल है, इसीलिए चलता है क्या होने वाला है करके। लेकिन धीमे धीमे उसका मार पड़ेगा, वो मार का एहसास करेंगे। अरे बाप रे, दादा ने कहा मेरी आज्ञा में रहने वाला महावीर भगवान जैसा घूमता फिरता रहेगा। हाँ, हम तो परेशान घूमते रहते हैं। तो ये क्या है, कहीं पर मेरी गलती है। इसीलिए कहा आज्ञा का निश्चय ही आज्ञा का पालन है, क्योंकि आज्ञा का निश्चय आपको आज्ञा में ही रखेगा। और आज्ञा जब जब टूटेगी तो आपको पता भी चलेगा। अभी तो आज्ञा टूटती तो पता भी नहीं चलता। अब सामने वाले का दोष है, वो ठीक नहीं चलता तो मैं क्या करूं, उसके कारण मैं परेशान होती हूँ। ऐसा होता है। दोष नहीं निकलने। बराबर। हाँ जी साहब। बहन, हाँ जी, सरस सरस सरस। दीपिका जी टाइम हो गया है तो प्लीज श्रीमंत बोला, गीता बहन फॉलो प्लीज। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंचो नमक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, कल संडे है, कविराज का प्रोग्राम जन्मोत्सव वहाँ लपकामन अहमदाबाद में मना रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। उसकी YouTube की लिंक भी आपको मिल जाएगी हम सभी को। सुबह 6:30 बजे जूम पर विधि होगी, प्रातः विधि, और रात को 9 बजे ऐसे ही इंग्लिश में सत्संग होगा। तो पधारिएगा। 10 मिनट के अलगपन के समय के साथ 6 कथाएं का कल आखिरी दिन है। बाद में हम इंडिविजुअल कथाएं पर फोकस करेंगे, तो पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।